नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू किरण मैम? Namaskar, Himanshi ma'am. Namaskar, dear parents. I am good. You tell me, how is everything? एवरीथिंग इज वेल एंड गुड एंड आज तो संडे है अगेन। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर वेबिनार। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार। आज का हमारा वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो आप सबका वेलकम वंस अगेन, एंड we will start today's webinar with the introduction of our school. So I would request our technical team to coordinate. जैसे कि आप सबको बताया, जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल है वो फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल है, बिकॉज यूरो इंटरनेशनल स्कूल बिलीव्स इन स्किल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स दैट स्टूडेंट्स possess। जो फ्यूचर में आने वाले जॉब हैं वो सारी हमारे स्किल्स के बेस्ड होने वाले जॉब हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूरो इंटरनेशनल स्कूल ने एक अपना स्टेप लिया है कि बच्चों को वो एक 21st सेंचुरी स्किल से इक्विप करे। इसी के चलते, इसी के अलाइन में हमारी स्कूल का मिशन और विजन है। सो वी नर्चर एवरी यूनिकनेस दैट द इंडिविजुअल इज हैविंग। जो भी एक बच्चा है उसकी अपनी खूबसूरती होती है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। टू इग्नाइट दैट पैशन एंड टू नर्चर दैट यूनिकनेस इज द मिशन ऑफ यूरो इंटरनेशनल स्कूल। Aligned with this mission, we are having our vision। हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि वो अपनी पर्सनल, इमोशनल, इंडिविजुअल ऑथेंटिसिटी को लेके कॉन्शियस रहें, वो इंटेलेक्चुअली कैपेबल हो, उनका माइंड इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो, और वो आगे चल के ट्रांसफॉर्मिंग लीडर्स बने। And here comes the introduction of our director. So, Mr. Shivram Chaudhary, he is founder and chairman of Euro International School. He's a dedicated educator, a renowned parenting expert, and a successful owner of Code Vidya Private Limited and Panusta Global as well. So he has this mission कि जो society है, he always wants to add value to the society, and what can be better than nurturing the kids that are going to be the future of our society. And as you know that today's webinar, Kiran ma'am and I are going to be taking this today's webinar. So we both have worked in the past years as well. So we both are counseling psychologists and we are working as PGT psychology at Euro International School. We both have also worked with Rajasthan government, Umeed Helpline, and we are adding again values to society. So this is the thing that we find very mutual in director sir and both of us, that all three of us are very much compassionate to add values, and this is what brought us together, and we are having these webinars. So please welcome Kiran ma'am as well. She is also here with us today and will be taking today's webinar. Thank you, Himanshi ma'am. Okay, so can we move ahead with today's webinar? As the ritual begins, before beginning today's webinar, we are going to have our meditation ritual that we usually do. And I would request all of you to close your eyes and sit comfortably and keep all the worries and thoughts behind and nurture today's webinar with this starting of meditation. So I would request all of you to sit comfortably, close your eyes, and have relaxing music with yourself, and take deep and relaxing breathing.
सो आई होप आप सबने इस मेडिटेशन का एक रिलैक्सिंग मोमेंट एक्सपीरियंस किया होगा, और इसी के साथ हम आज के वेबिनार के साथ आगे बढ़ते हैं. So I am going to share my screen with all of you now. Please give me a minute. तब तक आप हमें चैट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको ये स्पेशली जो रिचुअल हम फॉलो करते हैं मेडिटेशन वाला, वो कैसा लगता है? कि आपको लगता है कि इससे आप मेडिटेशन और जो रिलैक्सिंग टेक्निक्स है उनके कुछ क्लोज आ पा रहे हो, या फिर आप इनको फॉलो नहीं कर पा रहे हो? आप जो भी ऑनेस्ट आपका आंसर है वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। Okay, so please let me know, can all of you see the screen? Kiran ma'am? यस Okay, हिमांशु मैम, इट्स विजिबल। ठीक है. सो हमारा आज का वेबिनार है द पावर ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस. तो ये जो वेबिनार है, इसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ आर किड्स आर गोइंग टू फील. उन्हें एक्चुअल में फील होता क्या है, एंड हाउ एज अ पेरेंट यू कैन कंट्रीब्यूट इन दैट, और आपका क्या इम्पैक्ट होता है अपने बच्चे की लाइफ पे. सो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत है इस पेरेंटल इन्फ्लुएंस को समझने की, और क्यों जरूरत है कि अपने बच्चे को हम समझें. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टाइप योर आंसर्स और कमेंट्स in the chat box section. Kiran ma'am, since I'm sharing the screen, I'm not able to see कि क्या reply आ रहे हैं. So would you help me with that? Yeah, sure. I don't think we haven't got any replies till now. So हम्म. if we will get, I will surely share. ओके. सो क्यों Dear parents, जरूरत है, क्या जरूरत क्या होती है कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस से मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस टर्म का क्या मतलब है. one of the parent has shared that ओके. because the surrounding is important. ओके, बहुत सही बात, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे बोली गई है कि सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा वी आर एक इनकम्प्लीट. आंसर है to make them a better person. डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है ये भी कि एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के लिए पेरेंट्स की जरूरत होती है. एक पेरेंट है, उन्होंने शेयर किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स स्टेज एट होम एंड लर्न a lot from their parents and their habits. एग्जैक्टली अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं तो उसका सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स. जो एक बच्चा है वह अधिकतर अपना टाइम स्पेंड करता है अपने पेरेंट्स के साथ, और सेकेंड अपना स्कूल के साथ में. तो दैट मीन्स जो उनको एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर जो मिलता है एनवायरनमेंट का, वो दो तरीके से मिलता है. एक घर पे और दूसरा स्कूल में, और इस के चलते हुए उनको किस तरीके का माहौल मिलता है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालने वाला है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार. एंड रिसर्च में ये पाया गया है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर वह अपने बच्चे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दो तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है. पहला कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हो सकता है कि अगर वो बच्चे को अप्रोच कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, उसको सही तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. दूसरा ये इंटरेक्शन हो सकता है कि या तो वो बच्चे को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर बच्चे ने कोई बात भी पूछी है तो वो उसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको गुस्से में रिप्लाई कर रहे हैं. तो हम दोनों बातों को देखते हैं कि दोनों का कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो एक बात तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई है कि पेरेंट्स जिस तरीके से बोलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं अपने बच्चे से, उसका इम्पैक्ट तो होने वाला है. ना वो किस तरीके से होता है ये हम एक रिसर्च स्टडी की हेल्प से समझते हैं. तो अगर हम पेरेंटिंग में बात कर रहे हैं पॉजिटिव कम्युनिकेशन की, तो एक बच्चा है उसका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है. यहीं पे एक रिसर्च करी गई थी जिसमें ये पाया गया था कि जो अडोलेसेंट पीरियड होता है उसमें, दैट मीन्स जो टीनेजर्स होते हैं, उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है बच्चों को एक डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए.
और ये एक मेन रीजन पाया गया था कि अगर बच्चे के पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है या फिर सपोर्टिव नहीं है, तो दिस वाज वन ऑफ द लीडिंग कॉज जो कि बच्चों को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा था। एंड इफ यू आस्क मी, सिर्फ डिप्रेशन, इवन एंजाइटी एंड सुसाइडल अटैक्स, ये सुसाइडल आइडिएशन हुई, तो इन सारी चीजों के चलते हुए अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे अपने बच्चों को, डेफिनेटली ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने वाला है। इसी रिसर्च में जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया तो उनको आगे पता चला कि अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स कोऑपरेटिव है और उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जो डिप्रेशन का रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो डेफिनेटली कि जिस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है वो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली बच्चे को इफेक्ट डाल रहा है। एंड जो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन होते हैं उसकी एक चीज मैं शेयर करती हूँ कि सपोजिटली मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं और एक पिगी बैंक है, और उस गुल्लक में मैं सिक्के डालते जा रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे कॉइन्स मेरे पास एक दिन में ही आ गए हैं और मैं उसमें एक दिन में ही वो पूरा गुल्लक भर दूं। ऐसा नहीं होता है, राइट। होता ये है कि उस पिगी बैंक को, उस गुल्लक को भरने के लिए जैसे जैसे मेरे पास सिक्के आते जा रहे हैं मैं उसमें डालती जा रही हूँ, और एक दिन वो भरेगा एंड देन हम उसमें से सिक्के बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही रोल हमारे कम्युनिकेशन का होता है कि एक दिन में कुछ भी डायरेक्ट चीजें इफेक्ट नहीं करती है ना, इवेंचुअली वो सारी चीजें एड ऑन होती हैं और एट द एंड वो एंड प्रोडक्ट निकलती है। सो इन्हीं बातों को गौर में रखते हुए हम आज के सेशन में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही समराइज तरीके से हमने कोशिश करी है कि हम इसको पुट कर सकें। तो हमने कुछ थोड़ा सा डिवाइड किया है इसको कि रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड्स फ्यूचर। तो बेसिकली पेरेंट्स का रोल अगर हम देखें तो वो डायरेक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पे असर डालता है। और डेवलपमेंट को हमने छोटी छोटी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: सोशियो इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट काफी इजी टॉपिक है और पेरेंट्स ऑलरेडी इसके बारे में काफी क्यूरियस रहते हैं और अटेंटिव भी रहते हैं कि बच्चे ने खाना खाया क्या, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं क्या। तो मुझे नहीं लगता इसको हमें कुछ इलेबोरेट करने की जरूरत है, लेकिन सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव पे हम थोड़ा सा जोर देंगे क्योंकि ये ज्यादा हमारे मेंटल एस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है। तो सोशियो इमोशनल का मतलब है कि सोशल सर्कल और इमोशनल सर्कल बच्चे का कैसा है। सपोजिटली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बच्चे को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया हो तो डेफिनेटली उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम होने वाला है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होने वाला है, वो खुद को किस नजरिए से देखता है वो भी उसका कम होने वाला है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट पे इफेक्ट डालती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं सोशल का आपको देना चाहूंगी कि एक छोटा सा बच्चा है और उसने पोएम बोलना सीखा है या फिर एबीसीडी बोलना सीखा है, अल्फाबेट। तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि खुश होके वो अपने रिलेटिव्स को दिखाते हैं कि सी माय चाइल्ड हैज लर्न दिस, और बेटा एबीसीडी बोल के दिखाओ। अब यूजुअली बच्चा जब इसको एंजॉय करता है तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन बच्चे से जबरदस्ती ये बुलवाते हैं तो डेफिनेटली बच्चा उसको धीरे धीरे उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। और अगर बच्चा उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेगा दैट मीन्स वो अपना सोशल इंटरेक्शन कम कर रहा है वहां पे। तो लेटर ऑन चल के यही इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। इमोशनल, फॉर एग्जाम्पल कि हमने बच्चे की बात को ही तवज्जो नहीं दिया है, तो उसे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, राइट। और अगर सेंस नहीं निकल रहा है उस चीज का तो बच्चे को ये लगता है कि मेरी बात का कोई महत्व नहीं है, देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। एंड इवेंचुअली जो बच्चा है अपना ओपिनियन रखना बंद कर देता है। अगर वो अपना ओपिनियन रखना बंद करेगा तो डेफिनेटली उसकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव एक ट्रायंगल की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉग्निटिव में वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारी कॉग्निशन पार्ट की, दैट मीन्स जो भी हम सोचते हैं, हम डिसीजन बनाते हैं, हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीजें हमारी कॉग्निटिव के अंडर आ जाती है। और डेफिनेटली सपोजिटली कि चाइल्ड इज हैविंग एंजाइटी, तो अभी मेरे पास रिसेंटली भी एक केस आया है जिसमें शेयर किया है कि मैम सब कुछ सही चल रहा था मेरे बच्चे के साथ में, खुशी खुशी अपना स्कूल आ रहा था, लेकिन अभी अचानक से 10 दिन से उसको है ना स्कूल आने की इच्छा नहीं है। और क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी शेयर किया है और अब इसे शेयर करने का मेरा रीजन ये है कि ऐसे एग्जाम्पल्स काफी कॉन्जिक्यूटिवली आते रहते, ठीक है।
और उसके साथ में बच्चा साथ में बोल रहा है कि मम्मी मेरा पेट दुख रहा है या फिर मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, तो वहां पे उसकी फिजिकल बॉडी उसे बता रही है कि स्कूल जाने में डर है और तुम्हें उससे बचना है। तो हमारी बॉडी भी एक तरीके से हमें सिग्नल्स दे रही है। इसी को हमने फिर कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इन तीनों मेजर चीजों को। फर्स्ट इज पर्सनालिटी ट्रेट्स। दैट मीन्स हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारी थॉट प्रोसेस है, ये सारी हमारे ट्रेट्स वगैरह मिला के हमारी पर्सनालिटी बनती है। और वो पर्सनालिटी एक बड़ा एस्पेक्ट है, राइट? इसमें फिजिकल एस्पेक्ट आ गया, इमोशनल एस्पेक्ट आ गया, इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी आ गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर बाहर से कोई अपीयरेंस में अच्छा है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। नो, दैट इज रॉन्ग, एंटायरली रॉन्ग। अनदर थिंग इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको तो अभी हम आगे जैसे स्लाइड्स आएंगे तो वी आर गोइंग टू शेयर के हाउ टू इंटरेक्ट विद योर चाइल्ड। सो इस टॉपिक को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इवेंचुअली जब बच्चा बड़ा होता है तो वो खुद के बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करता है, राइट? आई होप आप सबको ये अब तक पता होगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिवली हमने ये एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से बच्चा अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करता है। सो जैसे ही बच्चा टीनेजर में आता है वो खुद के बिलीफ सिस्टम को भी क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे दो चीजें देखने की बात है कि एक तो बच्चे की खुद के साथ में रिलेशनशिप कैसी है, कि बच्चे ने खुद को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। दूसरा, अगर बच्चे ने खुद को तो एक्सेप्ट कर लिया है, उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, उसके फ्रेंड्स है या नहीं है ना, उस वो रिलेटिव से किस तरीके से इंटरेक्ट होता है। तो इस वाले टॉपिक में सारी चीजें आ जाएंगी कि रिलेशनशिप विद अदर्स। नेक्स्ट कम्स द एकेडमिक्स, करियर एंड मेंटल हेल्थ। सो ये इवेंचुअली ये सारा टॉपिक ही मेंटल हेल्थ का है। और अगर हम देखें जो पेरेंट्स जिस तरीके से बात करते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम उससे मेजर कर सकते हैं अपन कि किस तरीके से बच्चा खुद को अपनी नजरों में दिख रहा है, वो खुद कॉन्फिडेंट है या नहीं है, राइट? तो इसी के चलते वो ये देख सकते हैं कि अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है तो वह एकेडमिक्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, राइट? कि वो एकेडमिक्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, अचानक से बच्चे की ग्रेड्स कम तो नहीं हो गए हैं। इवेंचुअली मेरा बच्चा तो अच्छा स्कोर कर रहा था मैम, अभी इसको 9th ग्रेड में आते ही पता नहीं क्या हो गया, इसके दोस्त ऐसे बन गए हैं या फिर क्या हो गया। तो यूजुअली मैं अभी ये सारे इसलिए कंसर्न्स लेके आ रही हूँ क्योंकि ऐसे कंसर्न शायद आप लोग भी फील करते होंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड। आई होप कि आप सभी को जो अभी हिमांशु मैम ने समझाया है कि क्या क्या चीजें और किस किस तरीके से हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमने बात करी कि हमारा बच्चा है उसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उन अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस, मतलब कि बच्चा अलग अलग उम्र में होता है, तो कैसे हमारी चीजें उन बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। साथ में हमने देखा कि हमारा जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ में वो भी इफेक्ट करेगा उनकी पर्सनैलिटी को। दूसरा हमने बात करी कि जो एकेडमिक्स और करियर वाले कंसर्न सबसे ज्यादा होते हैं पेरेंट्स के, कि बच्चा है वो अपने एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको अपने करियर को लेके क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे चल के करना क्या है। इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं हमारे एज ए पेरेंट होने का रोल रहता है इन सब चीजों में, कि हम बचपन से हमारे बच्चे को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसके ये जो सारे एस्पेक्ट की बात करी थी, कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशियो इमोशनल, इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं जो हम हिमांशु मैम ने अभी आपको मेंशन किया कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसको हम आगे ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां से अपन बात शुरू करते हैं कि सबसे जो कॉमन चीज होती है एक बच्चे और उसके पेरेंट में, वो क्या चीज है? आपको क्या लगता है कि सबसे फ्रीक्वेंट आप बच्चे के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो? डेफिनेटली कम्युनिकेशन के थ्रू, उनसे बात करके। हम बच्चे से कॉन्टिन्यूअसली कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हमारा बच्चा हमारे अराउंड रहता है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बच्चे से किस तरीके से बात करें। वर्ड्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वर्ड्स लिखा हुआ है, वर्ड्स का मतलब क्या है, कि हम
किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, बच्चे से बात करने में हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स जैसा बोलेंगे बच्चा अपनी सेल्फ इमेज वैसी बना लेता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है, तब तक उसे नहीं पता कि वो कौन है, क्या है। जो पेरेंट उसके दिमाग में डालेंगे अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, बच्चा वही सेल्फ इमेज बना लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर पेरेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म उसके साथ में शेयर करते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, अगर हर जगह हम बोलते हैं ना कि नुक्स निकालने की जो आदत होती है, अगर हम बच्चे की हर काम में कमी देखने लग जाते हैं, और अगर हम वर्बली अब्यूज करते हैं बच्चे को, जैसे कई बार होता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, शेखावाटी एरिया है, या फिर एक बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो भी इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि पेरेंट्स थोड़े से अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। ये सारी चीजें एक्टिवेट कर देती है फ्लाइट और फाइट मोड को, जो हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सभी ह्यूमंस में होती है, फ्लाइट और फाइट मोड, कि या तो अवॉइडेंस वाला बिहेवियर आएगा, या फिर जो फाइट करने वाला बिहेवियर है वो आता है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकली क्या होता है कि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो हमारे ब्रेन में होता है, वो रिलीज होता है जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, जब भी हमारे बारे में कुछ भी नेगेटिव हमें सुनने को मिलता है, अब्यूजिव वर्ड सुनने को मिलता है, तो इन सारी चीजों से हमारे दिमाग में वो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज होता है। अब अगर ये बिहेवियर कॉन्टिन्यूअस रहता है तो कोर्टिसोल रिपीटेडली रिलीज होगा, बार बार, और ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। इससे क्या होता है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो इम्पेयर हो जाता है, इम्पेयर मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। जो बच्चे का इमोशनल, जो बच्चे दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब वो सही तरीके से नहीं कर पाते, और इसी की वजह से नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं? बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, बच्चे को एंजाइटी फील हो सकती है, बिहेवियर प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी जाती है हर बच्चे में, जैसे कि बच्चा कोई भी जो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है वो अडॉप्ट कर लेता है, जैसे चोरी करना, खुद अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना, या फिर लड़ाई करना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना। जो आज के टाइम में देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, और जो अनएथिकल बिहेवियर है जो हमें पसंद नहीं आते, पेरेंट्स के सामने बोलना, ये सारी शिकायतें आती रहती है। सेशंस में भी जब पेरेंट्स अपने बच्चे को काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं, तो कॉमन जो प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं वो यही होती है कि बच्चा अब्यूजिव वर्ड्स यूज करता है, बच्चा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और इसका बिहेवियर है वो सही नहीं है। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है? कहीं ना कहीं हम एज ए पेरेंट इन सारी चीजों को डेवलप होने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे डेवलपमेंट में, एज ए एक ह्यूमन के, एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है लैंग्वेज, कि क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बच्चा, खुद क्या यूज कर रहा है और पेरेंट्स क्या यूज कर रहे हैं। यही लैंग्वेज आगे चल के बच्चे के बिलीव्स को, उसकी वैल्यूज को और पर्सनैलिटी को बनाती है। कि अगर आप अच्छे से बात करेंगे, बच्चे को पॉजिटिवली बात करेंगे, तो बच्चा एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। अगर आप बार बार उसको नुक्स निकाल रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, तो बच्चा खुद में भी फिर कमियां निकालने लग जाता है। आगे हम बात करते हैं कि हमने ये समझा कि हम कैसे चाइल्ड जो है हमारा, बच्चा जो है हमारा, उसको कम्युनिकेशन के दौरान किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी के काम की चीज है ये, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पेरेंट ऐसा करता क्यों है। आप एक बार सोच के देखिए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ में इस तरीके का कोई बिहेव किया है। कुछ सोच के देखिए कि क्या आपने कभी ऐसे शब्द यूज किए हो, कोई ऐसे लाइन बोली हो, कुछ भी ऐसा जो शायद अगर आपको सुनने को मिलता तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। आप सभी चैट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर दीजिए, या फिर जो रिएक्शन बटन है उसको यूज करके यस या नो थम्स अप भी दे सकते हैं आप, कि आपने अपने लाइफ में कभी ऐसे सेंटेंस यूज करे हैं कि अपने बच्चे के साथ में जो सुनने में अच्छे ना लगे। अब्यूजिव वर्ड्स हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा
दिखाना हो सकता है, कोई ऐसा सेंटेंस कि तू तो मेरे बच्चा होने के लायक ही नहीं है, तुझे तो, तू तो गलती से पैदा हो गया, या फिर किसी तरीके की ऐसी जो सेंटेंसेस होते हैं जो बच्चे को नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं, क्या आपने यूज किए हैं क्या अपनी लाइफ में? बहुत सारे पेरेंट्स का रिप्लाई आ रहा है कि यस, बिल्कुल हम सभी एज ए पेरेंट यूज करते हैं ऐसे शब्द। हम खुद ही अवेयर नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ भी बच्चे ने गलती करी, तो नेचुरली वो रिफ्लेक्ट होता है। हम सोच के थोड़ी करते हैं कि मेरा बच्चा जब गलती करेगा तो मैं ये शब्द बोलूंगा, नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते। वो नेचुरली आ रहा है बाहर। क्यों आ रहा है ये समझना जरूरी है कि क्यों। बिल्कुल बाद में रिग्रेट करते हैं, किसी पेरेंट ने लिखा है कि हम बाद में रिग्रेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर रिग्रेट कर रहे हो उसका मतलब आप चाहते तो नहीं हो ऐसी बात करना। यही मतलब होता है कि हम ये चाहते थोड़ी कि हम अपने बच्चे को बुरा बोले, हम अपने बच्चे को अब्यूज करें। बिल्कुल भी नहीं चाहते हम एज ए पेरेंट। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये समझना जरूरी है कि क्यों हम अनअवेयर रहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तीन जो मेजर रीजन होते हैं इस सब के, वो आप समझने की कोशिश करिए। कि सबसे पहला होता है स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। पेरेंट्स का स्ट्रेस, पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन। अगर पेरेंट अगर आप जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है कि वर्क प्लेस का स्ट्रेस है वो आप यहाँ बच्चे पे निकाल रहे हो। आपको अपने पर्सनल रिलेशन का कोई स्ट्रेस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, करियर, जॉब, फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर रिलेटिव्स के कोई इश्यूज हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ के कोई इश्यूज हो सकते हैं। उससे जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, उसकी वजह से पेरेंट बच्चे पे वो निकालते हैं। इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं कि हमारे सबकॉन्शियसली हम ये करते हैं, हम कभी सोच के नहीं करते और हम खुद अवेयर नहीं होते इन सब के बारे में। सबकॉन्शियसली आप ये करते हो। तो उसका रीजन होता है कि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो लीड कर रहा है। दूसरा मेजर जो रीजन आता है वो ये है कि आपके खुद के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है कि आपको बचपन में ऐसे ही बड़ा किया गया हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमेशा शायद आपसे थोड़ा हार्शली बात करी हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिप्रेस्ड मेमोरीज हो सकती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। हम जब हम जिस एरा से बिलोंग करते हैं, जैसे आप सभी तो शायद हमसे भी बड़े होंगे, तो आप जब बच्चे थे तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, हम जो बोल रहे हैं वो बच्चों को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो हमारे पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे कि हम ऐसा कुछ भी हो सकता है, कि उन्हें तो लगता था कि बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है। तो वो गुस्सा भी करते थे, बोलते भी थे, कुछ कुछ जो सेंटेंस बोल देते थे। तो हम भी वैसे ही बड़े हुए। तो हम सबकॉन्शियसली वैसा ही बिहेवियर अपने बच्चों के साथ में करते। हमें खुद को भी नहीं पता कि हमने कब सीखा, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं वहां पे। जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। हम चाहते नहीं फिर भी होता है सबकॉन्शियसली। तीसरा जो मेन रीजन है वो है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि आपका कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे कोई दो ओपिनियन हो सकते हैं, कोई दो गोल हो सकते हैं, या दो से ज्यादा डिजायर्स हो सकती है, नीड्स होती है, तो वहां पे आप चूज नहीं कर पाते। या फिर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और उनके थॉट्स मैच नहीं करते, पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके थॉट्स मैच नहीं करते, उनके जो बिलीफ वैल्यूज है वो मैच नहीं करते, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। आपका अपने थॉट्स और अपने बच्चे के थॉट्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपका बच्चा तो फ्रीडम की तरफ ज्यादा जाता है, और आपको लगता है कि शायद बच्चे को इतनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। आपका बच्चा तो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जाता है, और आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की तरफ उसे इतना नहीं इंक्लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि हमने उसके ऊपर कभी बैठ के बात ही नहीं करी, हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है। ये तीन चीजें कंट्रीब्यूट करती है हम किस तरीके से अपने बच्चे से बात करते हैं। तो आप सभी एक बार खुद के बारे में सोचिए, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या? क्या आपके पेरेंट्स ने भी आपसे इस तरीके से बात करी थी? क्या वो गुस्सा करते थे? क्या वो भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलते थे? तो शायद आप समझ पाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। आगे हम बात करते हैं
कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने बच्चे से नहीं करनी चाहिए। आज तक किसी ने बैठ के इस बारे में बात नहीं करी कि क्या ऐसे शब्द हैं या फिर किस तरीके की बातें हमें अपने बच्चे को नहीं बोलनी चाहिए। ये जो पेरेंटिंग वेबिनार हमने शुरू किए हैं उसका पर्पस भी यही है कि जिन चीजों के बारे में बात नहीं होती है, हमें ये हाई टाइम है जब हम इनके बारे में बात करना शुरू करें। यहाँ पे सबसे पहला आता है नेगेटिव सेल्फ इमेज, कि कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसे शब्द आप अपने बच्चे के साथ में ना बोले जो उसको अपनी इमेज को नेगेटिव बना दे, बच्चा अपने बारे में गलत सोचने लग जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। यू ऑलवेज मैस द थिंग्स अप, कि पेरेंट्स है चलते चलते अगर मान लो बच्चे ने कुछ गिरा दिया, सिंपल है, छोटे बच्चे हैं तो वो कभी दूध गिरा देते हैं, कुछ चीजें गिरा देते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं और वो कोई काम टाइम पे नहीं कर पाए, शादी में जाना था क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, शादी में जाना था, बच्चा टाइम पे रेडी नहीं हुआ, आप लेट हो गए, आपका जो भी कन्विंस था वो नहीं अभी रह पाया, या फिर आप नहीं जा पाए टाइम पे शादी में। कुछ भी रैंडम जो डे टू डे लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो हम बच्चे को झट से ऐसे बोल देते हैं कि तुम हमेशा हर चीज खराब कर देते हो। छोटा बच्चा है तो उसको डांट देते हैं कि हर बार ही आप गिरा देते हो चीजों को, हर बार ही आपको कुछ भी नया खिलौना लाके दो आप तोड़ देते हो। तो इससे क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देख पाते, आगे चल के बच्चा है वो खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाता है। दूसरा, ये भी बोल सकते हैं कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये बहुत कॉमन है, ये सेंटेंस बहुत कॉमन है जो पेरेंट्स बोलते ही बोलते हैं अपने बच्चे को। अगर आप भी बोलते हो तो आप थम्स अप देखिए और हमें बताइए कि क्या आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हो क्या, कि तुम्हें तो चाहे कितना ही कह दो तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। या फिर आप ये भी बोलते होंगे कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे बच्चे हो। हम ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि जो पेरेंट्स बोल देते हैं कि पता नहीं कैसे ये मेरे घर में कैसे पैदा हो गया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये तो इतना ऐसा बच्चा हो गया है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन हाँ ये चीजें बच्चे को बहुत बैडली इफेक्ट करती है। उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो अपने बारे में जो नेगेटिव सोच रहा है, उसकी जो लो सेल्फ एस्टीम है, वो इस वजह से उसको भी नहीं पता और हमें भी एज ए पेरेंट नहीं पता। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की, ताकि हम अवेयर हो सके। ओके। सो अभी जैसे कि हमने बात करी और यहाँ पे हमारी बात चल रही है कि कैसे हमें वो सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं हमारे बच्चों को, राइट? तो इनके साथ साथ में हम आपको बताते जा रहे हैं कि अगर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो इम्पैक्ट क्या डाल रहा है बच्चे के ऊपर। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिसमिसिव और इनवैलिडेटिंग। दैट मीन्स कि बच्चे की कोई फीलिंग है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हम उसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। हमें जरूरी नहीं लग रही है कि हमारे बच्चे को अगर बुरा लग रहा है, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाना है और हम उसे जबरदस्ती कर रहे हैं, उसे लेके जा रहे हैं, और हम ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चा किस वजह से उसमें नहीं जाना चाहता है, राइट? तो यहाँ पे हम अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप बेटा जाना क्यों नहीं चाह रहे हो। बट बिफोर दैट वो बॉन्ड इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा आपको खुल के बोल सके। तो कभी कभार हम बच्चे को बोल देते हैं, अगर बच्चा किसी बात पे रो रहा है, कि डोंट क्राई, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। क्या क्या रोना लगा रखा है इसके ऊपर, कब से रोई जा रही है। सो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली बच्चों को कम्युनिकेट कर देते हैं। और इसमें इवेंचुअली मैं ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स की गलती है, बिकॉज उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये खुद ने भी फील किया होगा। जस्ट इमेजिन कि हम एक इवॉल्व जनरेशन है, राइट? तो दैट मीन्स क्या है कि कितने साल की पीढ़ियों से हम अब आज वाली पीढ़ी पे है, और इतने सालों का जो ट्रॉमा है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि प्लेजरेबल नहीं है, वो एड ऑन होते हुए हमारे साथ आए हैं। और क्या हम ये सेम चीज हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं, राइट? दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। बिकॉज कभी कभार हम बोल देते हैं कि एक्ट मेच्योर, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड, और स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक। इंस्टेड हमने ये नहीं देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मेरे बच्चे को वहां पे अनसेफ फील हो रहा है। यूजुअली काफी बार लड़कियों के साथ में ये होता भी है
कि उनको काफी ऐसी ट्रॉमेटिक चीजों से निकलना पड़ता है या फिर अब्यूज से निकलना पड़ता है, और वो जो अब्यूज देने वाला होता है वो फैमिली का ही कोई रिलेटिव या फिर बहुत ही करीबी रिश्तेदार, दोस्त या फैमिली मेंबर भी होता है, राइट? तो क्या वहां पे बच्चे को सेफ फील हो रहा है? तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। और यूजुअली ये होता है कि अगर हम बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते, तो लेटर ऑन जब उसकी खुद की शादी होती है तो वो खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करना सीखता है, और इवेंचुअली वो सेक्रीफाइस करता जाता है। ये फीमेल्स में ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है कि फीमेल्स जल्दी से अपनी चीजों को, अपने ड्रीम्स को, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को, वो बहुत ही जल्दी उसको छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि नाउ शी इज अ मैरिड गर्ल और मैरिड विमेन, एंड शी हैज टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस। वो खुद के लिए बोलना ही नहीं सीख रही है। अगर हम बच्चे को एक अनहेल्दी तरीके से कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे से, तो एक जो डिस्टेंस होता है पेरेंट और बच्चे के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई वॉज डूइंग करियर काउंसलिंग कुछ दिन पहले, एंड देन आई गॉट टू नो कि मैम मेरी ये XYZ हॉबी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस चीज को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो मेरे ग्रेड्स कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चे से। अब ये तो फिक्स है कि हर बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आने वाला है नहीं, सारे बच्चे नहीं आएंगे, राइट? सो और हर बच्चा हर चीज में अच्छा भी नहीं हो सकता है। बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये लगता है कि पेरेंट्स बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो फीस पे कर रहे हैं, और उसकी वजह से दे एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा इस चीज में अच्छा हो। बट देयर कैन बी अदर फैक्टर्स एज वेल कि जिसमें बच्चा अच्छा हो सकता है, टैलेंट हो सकता है उसमें, एंड वी नेग्लेक्ट दिस थिंग, और हम यूजुअली कंपेयर कर लेते हैं। एक कंपैरिजन जो गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है कि तुम इतनी सुंदर नहीं दिखती हो, या तुम्हारे पे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। सो वो खुद की बॉडी को क्वेश्चन करने लग जाती है, इवेंचुअली वो खुद की बॉडी से नफरत करने लग जाती है। बच्चों को बोला, लड़कों को बोला जाता है कि एक्ट सेंसिबल, लड़कों की तरह बिहेव करो, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, उसे खुल के अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को बाहर एक तरीके से एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे हैं। और इवेंचुअली फिर वो खुद की फीलिंग्स को लड़का खुद समझना भी भूल जाता है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। हम क्रिटिसाइज करते हैं कि सपोजिटली एक बच्चा आया है और वो बोलता है कि मैम मुझे बॉक्सिंग में जाना है, बॉक्सिंग में आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे फादर को लगता ही नहीं है कि ये कोई पैशन भी हो सकता है, इससे एक करियर भी बनाया जा सकता है। ऑल ही वॉन्ट्स इज मी टू फोकस ऑन एकेडमिक्स। या फिर वो ये बोलते हैं कि तुम इतने स्मार्ट ही नहीं हो, तुम इस चीज में सक्सेस तुम्हें मिल ही नहीं सकती है। या फिर कि यू आर वेरी क्लमजी एंड यू विल मेस अप द होल थिंग, जस्ट स्टॉप डूइंग इट, यू डोंट हैव टू डू इट। तो यहाँ पे बच्चे को खुद को धीरे धीरे इवेंचुअली बिलीव होने लग जाएगा कि अब ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि मैम मेरा बच्चा बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, उसके पीछे का एक ये रीजन है कि हमने क्रिटिसाइज कर दिया, और जो बात बार बार बोली जाती है वो अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। अनकॉन्शियसली का यहाँ पे ये मतलब है कि उस चीज के बारे में ना ही तो वो बच्चा खुद अवेयर है, ना ही वो अवेयर हो सकता है उस चीज के बारे में। हमारी थॉट्स और हमारे माइंड का बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। सो हमारे माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस में वो सारी चीजें हैं जो फिलहाल, जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि अभी एक वेबिनार ले रही हूँ मैं जिसमें मैं पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रही हूँ, ऑनलाइन होने वाला है, हम पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो फिलहाल मेरी नॉलेज में है वो सारा मेरा अभी है। सेकेंड इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें स्टोर हो जाती है जो कि मैं एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि वहां पे अनलिमिटेड डेटा स्टोर है, मेरे बचपन से लेके अब तक की सारी चीजें स्टोर है, लेकिन मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकती, मैं उसे पहचान नहीं सकती, उसको मैं याद नहीं कर सकती हूँ, राइट? सो अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज चली जाती है तो वो इवेंचुअली बाहर आती ही है, हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे बिहेवियर के थ्रू, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू, और हमारे इमोशंस के थ्रू। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चे को। देन नेक्स्ट कम्स लेबल एंड थ्रेड्स। वेट अ मिनट। ओके,
सो नेक्स्ट इज लेबल एंड थ्रेट। तो यूजुअली कभी भी जैसे पेरेंट्स आते हैं कि मैम मेरा बेटा जिद्दी बहुत है, जिद बहुत करता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेबल कर दिया। जैसे कि क्लास में अगर कभी बच्चे को बोला जाए कि तुम तो बहुत बुद्धू हो, तुमसे ये नहीं होने वाला है, तो वो बुद्धू वाला टर्म जो गया वहां पे लेबल हो गया। और इवेंचुअली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वो वहां पे स्टोर हो जाएगी। और अगर वो वहां पे स्टोर हो गई तो उसी के तरीके से मैं फंक्शन करने लग जाऊंगी कि मैम ये तो बहुत आलसी है ना, बोलते हैं हम यूजुअली। नेक्स्ट कम्स थ्रेट्स। जैसे कि एक छोटा बच्चा है और वो किसी टॉय शॉप पे गया है अपने पेरेंट्स के साथ में। अब वहां पे बच्चे को कोई टॉय पसंद आ गया बट पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू बाय इट, पेरेंट्स को वो नहीं ले सकते, राइट। और बच्चा वहां पे रोने लग जाता है, तो उसको डरा दिया जाता है कि अगर तू अभी चुप नहीं हुआ ना बेटा तो मैं तुझे यही छोड़ जाऊंगा और फिर अंकल तुझे अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बच्चे के खुद ही मन में डर डाल रहे हो। सेपरेशन एंजाइटी फ्यूचर में डेवलप हो जाती है इस चीज को लेके। अभी मैं कुछ रिसेंटली एक केस से डील कर रही थी, तो वो केस स्कूल से नहीं था, स्कूल से बाहर का था। और उन पर्सन की एज थी 42 ईयर्स। तो उन पर्सन में एक प्रॉब्लम थी कि वो जब छोटे थे तो यूजुअली स्कोर कम कर रहे थे। और टीचर ने सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा डरा देता हूँ, उस तरीके से ये पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने लगेगा। तो बच्चा फर्स्ट, दैट मीन्स जो पर्सन अब 42 ईयर्स का है वो उस टाइम फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में थे। और उस ग्रेड में जब वो थे तो टीचर ने ये किया कि एक छोटा सा रूम था जिसमें बहुत अंधेरा था, और उसे उसमें बंद कर दिया और ये बोल दिया कि तुझे तो अब जानवर आके लेके जाने वाला है, शेर आने वाला है और लेके जाने वाला है। वो बच्चा बहुत रोया। अब जब वो 42 ईयर्स के हैं वो सेम चीज उनके दिमाग में है और वो एक ही सेंटेंस रिपीट करते हैं कि उस शहर की, इस स्कूल में मत जाना, वहां पे बच्चों को काले कमरे में बंद कर देते हैं और वहां पे शेर आके बच्चे को खा जाता है। तो कैन यू इमेजिन कि वो कहाँ से वो चलता हुआ ट्रॉमा यहाँ तक आया है। इवेंचुअली यूजुअली ये भी होने लग जाता है कि अब जैसे उनको शेर से डर लग रहा है तो वो कहीं पे भी शेर की फोटो देखेंगे या फिर शेर की वीडियो देखेंगे तो वहीं पे वो डरने लग जाएंगे और उनको पैनिक अटैक आने लग जाएंगे। तो इवेंचुअली यहाँ पे क्या हुआ कि उनको शेर से, काले कमरे से फोबिया डेवलप हो गया। अब उस शहर में ही नहीं जा सकते हम। क्यों? क्योंकि उस स्कूल में वो शहर है, सॉरी, उस शहर में वो स्कूल है और स्कूल में वो टीचर है और उसमें वो काला कमरा है, उसमें बंद कर देंगे और वहां पे शेर आके खा जाएगा। तो एक छोटी सी बात के, उस टीचर ने तो कोशिश ये थी कि वो बच्चा अच्छी ग्रेड्स लेके आने लग जाए, बट इवेंचुअली वो तरीका गलत था। इंटेंशन यहाँ पे सही थे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी, ऑब्वियसली पेरेंट्स है तो अपने बच्चे का अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन आप किस तरीके से उस चीज को बच्चे को सिखा रहे हो, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इवेंचुअली मैटर्स। अभी काफी अच्छे से हमने समझने की कोशिश करी कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें बच्चों के साथ में नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि हिमांशु मैम ने बताया कि उनको हम थोड़ी धमकियां दे देते हैं कि अगर आपने काम नहीं किया तो ऐसा कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें ये बच्चों के साथ में इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का कम्युनिकेशन है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। एक केस था, जो फैमिली जो थेरेपी है उसका केस था मेरे पास। उसमें उनके जो ग्रैंडफादर थे, बच्चों के जो ग्रैंडफादर थे, वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे। पहले अपनी जो एज थी उसमें वो 70 ईयर्स तक उनका नॉर्मल लाइफ था। बट 70 ईयर्स के बाद में अचानक से एक दिन उनका मेंटल डिस्टरबेंस हुआ। और उसके बाद से अब वो कुछ एक ही चीजें उनको याद है। ना तो वो किसी को पहचानते हैं और ना ही वो किसी को जानते हैं। उनको सारी चीजें हैं वो मेमोरी से उनकी लॉस हो गया, उनका मेमोरी लॉस हुआ। और कुछ कुछ एक दो ट्रिगर पॉइंट्स थे जो उनको याद रहे। उनका एक बेटा था जो सेपरेट हो गया था अपने भाइयों से, दूसरी जगह रहने लग गया। तो उनके जो जब से उनका मेमोरी लॉस हुआ उसके बाद से अब वो सिर्फ उस एक बेटे को याद करते हैं। और वो आ भी जाते तो उसको पहचानते नहीं है, बस उनके दिमाग में वो एक लाइन है कि वो छोड़ के जा रहा था। तब से वो उनको याद है। वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उनका। अब वो बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे इस केस में
कितने बचपन की या कितनी पुरानी बात थी कि वो उनकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं इतना ट्रॉमेटिक था वो, कि जब उनका मेमोरी लॉस हुआ तो वो एक ट्रिगर पॉइंट उनका रह गया लाइफ में, और कॉन्टिन्यूअसली वो सिर्फ उस एक ही लाइन को बोलते हैं। इससे उनके बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो यहाँ पे ये शेयर करने का मीनिंग ये है कि उनको उनके बेटे ने जो लाइन बोली, वो एक पेरेंट को भी इफेक्ट कर गई। तो सोचिए, पेरेंट्स की बोली हुई लाइन या फिर पेरेंट्स के यूज किए हुए वर्ड्स बच्चे को कितने गहरे इम्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि उसे तो अभी तक अपने इमोशंस को रेगुलेट करना ही नहीं आता। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि इन सारी चीजों को प्रोसेस कैसे करना है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर देते हैं, जैसे कि गिल्ट ट्रिप देते थे हम अपने बच्चे को। कैसे? कि जैसे बोल दिया कि इफ यू डोंट डू दिस फॉर मी, आई विल नेवर आस्क यू फॉर एनीथिंग अगेन। अब बच्चे को हमने गिल्ट में डाल दिया कि अगर मैंने मम्मी का या पापा का ये काम नहीं किया तो वो मेरे से कभी बात नहीं करेंगे, या फिर वो मेरे को दोबारा किसी काम के लिए नहीं बोलेंगे। या फिर उनको इस तरीके का गिल्ट देना कि मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। यूजुअली जो मदर्स होती हैं वो काफी ज्यादा इस सेंटेंस को यूज करती है कि मैं तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अब यहाँ पे बच्चे को क्या होता है, गिल्ट आ जाता है कि हमारी मम्मी तो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, और हम शायद उनके अच्छे बच्चे नहीं है, हम शायद लायक नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को खुश कर सके। आगे हम बात करते हैं। हिमांशु मैम, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड। अब हमने ये सारी चीजों के बारे में बात करी, काफी एक एक के बारे में, कि कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है बच्चों के साथ में, किस तरीके का कम्युनिकेशन हमें नहीं रखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक चलिए आपसे एक क्वेश्चन, आप सभी पेरेंट्स हैं, आप थोड़े से एक्टिव हो जाइए और चैट बॉक्स में या फिर रिएक्शन बटन का यूज करके हमें बताइए कि सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप अपने बच्चे को जानते हैं? क्या आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं? क्या उसके बारे में सारी चीजें जानते हैं? आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक चैट बॉक्स में या फिर रिएक्शन बटन से हमें बताइए। जानने का मतलब है कि आप उसकी इंटरेस्ट, वो कैसा है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, सिर्फ खाने पीने में नहीं, इंटरनली भी उसके क्या थॉट्स हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं क्या अपने बच्चे को पूरी तरह? काफी मिक्स रेस्पॉन्स आ रहे हैं, कि काफी सारे पेरेंट्स है वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, काफी पेरेंट्स बोल रहे हैं यस, कुछ पेरेंट्स का आंसर है कि मे बी वी आर नॉट श्योर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, कि कौन कौन से सेंटेंस नहीं बोलने, किस तरीके का कम्युनिकेशन हमें नहीं करना। अब बारी आती है कि करना क्या है फिर। अब अगर हमें इस इन चीजों का ध्यान रखना है तो हमें करना क्या चाहिए वो भी जरूरी है जानना। तो सबसे पहली जो चीज आती है, आप टाइम टू टाइम अपने बच्चे को प्रेज करिए, उसको शाबाशी दीजिए कि अगर वो कोई अच्छा काम करता है, अगर उसने आपके लिए कुछ, नॉर्मली अगर उसने चाय भी बनाई है आपके लिए, तो आप उसको थैंक यू बोलिए, आप उसको प्रेज करिए। अगर किसी दिन बच्चा है कॉन्टिन्यूअसली, मान लीजिए 10 में से 5 नंबर स्कोर कर रहा था क्लास टेस्ट में, किसी दिन बच्चे के 7 नंबर आते हैं, वो आपको आके अपनी आंसर शीट दिखाता है, तो आप उस दिन उसको प्रेज करिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी ग्रोथ करी है, तुम्हारे 5 नंबर आ रहे थे, तुमने मेहनत करी और तुम्हारे अब 7 नंबर आए। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को मोटिवेट करती हैं। दूसरा है कि आप एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बिल्ड करें अपने बच्चे के साथ में, जहाँ पे आप अपने बच्चे को ट्रस्ट कर रहे हैं और बच्चा आपको ट्रस्ट कर रहा है। आप भी अपनी चीजें बताने से पहले आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मैं ये बात अपने बच्चे को कैसे बताऊं। वो अगर रिलेशन इतना स्ट्रांग है तो आपका बच्चा भी कभी नहीं घबराएगा, ना ही कभी वो सेकंड थॉट उसके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं। ये भी एक कॉमन इश्यूज है, जो भी मेरे पास केसेस आते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा हमें बताता ही नहीं है। इसीलिए मैंने सवाल भी इसीलिए पूछा था कि क्या आप जानते हो क्या अपने बच्चे के बारे में सब कुछ। तीसरी जो चीज आती है कि बच्चे की फीलिंग्स को समझिए।
हमें भी, हम चाहते हैं हमारे बच्चे एम्पैथेटिक बने, तो उससे पहले हमें एम्पैथेटिक बनना पड़ेगा। हम अपनी फीलिंग्स को समझें, अपने इमोशंस को समझें, और अपने बच्चे के इमोशंस को भी समझें। तभी बच्चा भी है, उसकी जो दिमाग है वो उस तरीके से वायर होगा कि वो भी इन सब चीजों को समझ पाएगा कि आपको क्या फील हो रहा है। मैं अगर ऐसा कोई बिहेवियर करूंगा तो मेरे मम्मी पापा को कैसा लगेगा। मैं पब्लिक में खड़ा हूँ, दूसरों के साथ में हूँ, दोस्तों के साथ में हूँ, या फिर कोई भी गलत आदत में डालता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को कैसा फील होगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये फील करे, लेकिन हमने कभी उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट ही नहीं किया, उसको समझा ही नहीं, तो उसको भी नहीं, आदत ही नहीं है उसको। तीसरी जो चीज आती है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि आप उसके साथ में पॉजिटिव रिलेशन ऐसा रखो बिना जज किए हुए, कि वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी ये बात मानोगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगा। नहीं, आप हमेशा उसे सुनिए। चाहे बच्चा है, उसके पास कोई ऐसी बात भी है जो शायद इतनी वर्दी आपको नहीं लगती हो, लेकिन बच्चे के लिए वो वर्दी है, इसीलिए वो आपको बताना चाह रहा है। तो आप उसकी बात को सुनिए, चाहे उसके पास कुछ भी हो कहने के लिए, बिना जज किए हुए, बिना कोई कंडीशंस लगाए हुए। तीसरा जो आता है, नो योर चाइल्ड, ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने आपसे अभी पूछा, कि आप अपने बच्चे को जानिए, उसके हर एस्पेक्ट को जानिए, जिसमें आता है बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे के थॉट्स, बच्चे का जो ओरिएंटेशन है कि वो किस तरीके की चीजों को प्रेफर करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसकी क्षमताएं क्या क्या है, वो क्या काम अच्छा कर सकता है, क्या काम है वो नहीं कर सकता। अगर आपको इसका नॉलेज होगा कि मेरा बच्चा है, उसका ये एप्टीट्यूड है, तो आप कभी उस पर जबरदस्ती नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका एप्टीट्यूड मैथमेटिकल चीजों में अच्छा नहीं आता, अब हमें पता ही नहीं है कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो किन चीजों में अच्छा है, और हम बार बार ये करते रहते हैं कि नहीं तुझे तो, या तो मान लीजिए सब्जेक्ट चूज करने में ऐसे करते हैं कि मैथ्स लेनी है, हमें नहीं पता, हो सकता है कि सेवन्थ एट्थ क्लास में या फिर इवन टेंथ में भी उसके मैथ्स में अच्छे नंबर आए हो, लेकिन हमने कभी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया, तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली में उसका एप्टीट्यूड है या नहीं। हो सकता है बच्चे ने क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रिपेयर किया हो कि वो आंसर बस लिख के आया, उसको समझ में कुछ नहीं आया, और वो सही हो गए, तो मार्क्स तो आ सकते हैं, लेकिन उसका एप्टीट्यूड एक्चुअल में है या नहीं उस फील्ड में, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बच्चा नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, 90 अबव स्कोर कर रहा है, तो पेरेंट्स का जनरली ये रहता है कि 94 95 वाले बच्चे तो साइंस लेंगे। लेकिन अगर मान लो बच्चे का आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है, कि उसको आर्टिस्टिक चीजों में, या फिर जो पॉलिटिक्स है, जो ज्योग्राफी है, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है उसका, तो डेफिनेटली वो ह्यूमैनिटीज लेगा। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ जानी हुई बातों के बेस पे डिसीजंस लेते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में भी एक बड़ा सवाल आता है कि अब जाने कैसे बच्चे को। ये भी एक काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मैम आपने बता तो दिया कि बच्चे को जानो, उसके एप्टीट्यूड को समझो, उसके इंटरेस्ट को समझो, लेकिन समझे कैसे? क्या बच्चा पूछने से बता देगा? यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि शायद बच्चे को खुद को भी नहीं पता। बहुत सारे केसेस ऐसे ही आते हैं जिनमें बच्चे को खुद को नहीं पता कि मेरा कौन सा पार्ट अच्छा है। वो अवेयर, वो जो हिमांशु मैम ने अभी एक्सप्लेन किया था, अवेयरनेस, अवेयरनेस की जो कॉन्शियस स्टेट होती है, जो कॉन्शियसनेस है, वो उसमें उनके है ही नहीं कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं, उनको पता नहीं है। अब एक पेरेंट का आंसर है कि वी वुड हैव टू ऑब्जर्व, कि हम बच्चे को ऑब्जर्व करके बताएंगे। डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन वर्क समटाइम्स, बट हम उसका फील्ड में एप्टीट्यूड में कैसे पता करेंगे कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है या फिर वो स्पेशल चीजों में अच्छा है? हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, कुछ तो एक साइंटिफिक रिजल्ट होना चाहिए जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सकें। सिर्फ ऑब्जर्वेशन कभी कभी गलत भी हो सकती है, बायसनेस भी आ सकती है ऑब्जर्वेशन में, कि मैं, मेरे दिमाग में एक पैटर्न है कि अगर बच्चा है वो कलर्स ज्यादा यूज करता है, इसका मतलब वो आर्टिस्टिक होगा। तो मैं देखूंगी ऑब्जर्व करके कि हाँ बच्चा कलर बहुत ज्यादा यूज करता है, तो इसका मतलब उसका एप्टीट्यूड आर्टिस्टिक है। लेकिन हो सकता है कि नहीं हो। मेरे पास प्रूफ क्या है कि वो आर्टिस्टिक है? इसके लिए आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो आप कंडक्ट करवाइए बच्चों को। ये बहुत ही, जैसे हम अपने बच्चों के टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाते हैं, अपने बच्चों के जो मेडिकल चेकअप करवाते हैं ना रेगुलर, कि हाँ ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवा लिए,
और उनकी जितने भी जो नॉर्मल जो चेकअप्स होते हैं वो हम हर साल या हर मंथ जैसे भी आप करवाते होंगे हम डेफिनेटली करवाते हैं। तो ये भी एक उसको कंपेयर करो कि मेंटल हेल्थ और इन सब चीजों की उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि हर पेरेंट अपने हर बच्चे का एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट तो करवाए ही करवा। इसको ये मान लीजिए कि ये तो कंपलसरी होता है, ये तो करवाना ही चाहिए, जैसे हम मेडिकल की रिपोर्ट्स बनवाते हैं वैसे ये भी होनी ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपको मौका मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा कि आपका बच्चा कैसा इंसान है, आपका बच्चा का किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो बहुत सारे ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो बहुत सारी कंपनीज भी हैं वो भी बनाती हैं और वो सर्विसेज देती हैं। इसीलिए क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो हमने भी आपके लिए एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है वो डेवलप किया है। तो जो भी हमारे साथ पेरेंट जुड़े जुड़े हुए हैं उनके लिए आसान हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि गूगल पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करना भी मुश्किल है कि कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट करवाए, कहाँ से करवाएं, प्रोसेस क्या है, कौन करवाएगा, रिजल्ट कैसे मिलेंगे, और रिजल्ट मिल गए तो उनको समझाएगा कौन। इसीलिए आपका ये सारा काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने खुद ही इन हाउस एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आते हैं। पूरा प्रोसेस करके और फिर ही हमने उसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। बहुत सारे लोगों ने तो, बहुत सारे पेरेंट्स ने तो ऑलरेडी करवा लिया अपने बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप भी ये एक, मैं कहूंगी कि एक ओथ ले सकते हैं कि मैं अपने बच्चे का कम से कम एप्टीट्यूड टेस्ट तो पक्का ही करवाऊंगा। आई थिंक मानसी मैम वुड एग्री ऑन दैट। हाँ, definitely I would agree to what Kiran ma'am has said right now. To know your child better, you can go for psychometric assessments. और जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यूजुअली मार्केट में साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऐसे भी मिलते हैं ओपनली। बट साइकोमेट्रिक असेसमेंट आप एक प्रैक्टिशनर से करवा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट से करवा रहे हैं, मैटर वो करता है ज्यादा। बिकॉज XYZ पर्सन आएगा कि ये मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैंने डेवलप किया है, आप करवाए। बट वो ऑथेंटिक कितना है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, दैट ऑल्सो मैटर्स। कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भाई वो सच में डॉक्टर है या फर्जी डिग्री वाला है, ये देखते हैं ना। तो द सेम गोज हियर एज वेल। ऑल्सो जो ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट है वो हम उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। दिस इज एंटायरली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री में आप अपने बच्चे का एप्टीट्यूड जान सकते हैं, एंड ये आपको ही हेल्प करेगा और आपके बच्चों को हेल्प करेगा। अनदर थिंग, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन के कैसे करवाना है, कब करवाना है, वो आपको उस सेम नंबर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिस नंबर से आपको इस वेबिनार का लिंक मिला था। तो आपको कहीं भी यहाँ पे हमने टास्क इजी कर दिया है कि यहाँ पे भी कोई भी हैसल वाली सिचुएशन नहीं होने वाली है कि कहाँ से मिलेगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट और कहाँ से करवाना है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी, रिजल्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। ओके, सो ये सारा हमने नैरो डाउन कर दिया है बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ यूरो फैमिली नाउ। एंड फैमिली में हम सब फैमिली मेंबर्स की वी टेक केयर ऑफ ईच अदर, सो दैट इज व्हाई वी हैव मेड इट क्वाइट इजियर। नाउ आई वुड स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन अभी। आई वुड रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम टू शेयर द स्क्रीन। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने एग्जैक्टली। की जरूरत नहीं है कि कुछ हाँ, अमाउंट लगेगा क्या। apart from this Euro aptitude test, since you are a part of Hero family now, so we are going to have early bird discount as well. So we are going to give you 10% discount for the first 100 admissions. So जो भी आपको लगता है कि आपको बच्चों का, यूजुअली हम भी ये बिलीव करते हैं कि बच्चे के दो घर होते हैं, एक तो उसका खुद का घर और दूसरा उसका स्कूल। एंड दिस इज व्हाट यूरो बिलीव्स। और इसी के चलते तहत, since you are a part of Hero family, we are going to give you early bird discount. So that is going to be 10% flat discount अगर आप एडमिशन करवाते हैं अपने बच्चों का। 29 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और ये डिस्काउंट सिर्फ टॉप 100 फर्स्ट एडमिशन्स के लिए ही होने वाला है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, दिस इज पार्ट ऑफ Q&A। यहाँ पे आप अपने चैट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस हियर, जैसा कि हम हर बार करते हैं।
सो आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप फटाफट अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए सो दैट वी कैन आंसर। इवन किरण मैम, आई बिलीव कि Q&A वाला मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज इतनी हाँ, देर क्योंकि सिर्फ हम ही बोल रहे होते हैं राइट, एंड देन पेरेंट्स पेरेंट्स भी ऑल्सो गेट इंटरेक्ट कर चांस टू पाते हैं। स्पीक। राइट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मैम माय सन इज गोइंग टू फ्लोरेटो एंड would like to conduct this aptitude test. Is it possible? Definitely सर, ये aptitude test possible है। आपको इस aptitude test की इंफॉर्मेशन बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी उसी सेम नंबर से जिस नंबर से आपके पास इस वेबिनार का लिंक आया होगा। कोई भी स्कूल में पढ़ते हो आपके बच्चे, नो मैटर, हाँ, अगर आपके बच्चे सीकर में रहते भी नहीं है या फिर कहीं है, तो जब भी वो सीकर आते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, आप आ सकते हैं, आप उसको एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट करवा सकते हैं। यहाँ हाँ, पे इट एक डजंट पहले एक मैटर कि क्वेश्चन आप आया था दूसरी। हाँ, कि एक पेरेंट का क्वेश्चन आया था कि उनका बच्चा है वो काफी ज्यादा जो ऑनलाइन गेम्स है वो काफी खेलता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है उनका। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मोबाइल एडिक्शन के ऊपर वेबिनार किया था लास्ट संडे एग्जैक्टली। को। तो अभी हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएंगे कम्युनिटी का, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पे वो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, तो आप वो सेशन देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसे इन चीजों को हैंडल करना है और क्या एक्शंस लेने चाहिए। हिमांशु मैम, आप अभी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके लिए? एग्जैक्टली, द थिंग इज कि हमने बहुत ही प्रिसाइजली एंड करेक्टली उसमें ये सेम क्वेश्चन का आंसर दिया है। सो अभी थोड़ी देर में हम एक कम्युनिटी का लिंक और QR कोड आपसे शेयर करेंगे और आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो भी हमने पहले वेबिनार में सब कुछ बताया है इसके रिगार्डिंग। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अभी हमने जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की है उसके लिए मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर भी दे रही हूँ, दैट इज 7009270097। ये सेम नंबर आपकी चैट बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप इस नंबर पे हमें ये बता सकते हैं कि यू वांट टू हैव एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर योर किड, और इसके रिगार्डिंग की जो फर्दर प्रोसेस है हम इसी नंबर से कैरी ऑन कर लेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको नंबर बता देती हूँ, 7009270097। ये सेम नंबर आपकी चैट बॉक्स में भी अवेलेबल है, 7009270097। विनय जी, अभी एक कम्युनिटी का हम स्कैनर आपको, क्यूआर कोड है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहां पे आप एक क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको एक प्रिसाइज एक ऐड करके कुछ पॉइंट्स वो हम आपको वहां भेज देंगे, बाकी पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। और दूसरा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिससे कि आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप उसको तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़े से समय में सारी चीजें कि क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजों का आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम प्रिसाइज वे में आपको कम्युनिटी पे आंसर्स अवेलेबल करवा देंगे, और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो सेम एप्टीट्यूड लिंक है और जो प्रीवियस जितनी भी वेबिनार्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी सेम नंबर पे आप रेफर कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है ऑनलाइन होगा क्या? यूजुअली जो टेस्ट है ऑनलाइन तो होगा, लेकिन वी वुड प्रेफर यू टू कम टू स्कूल बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर किड ओवर देयर। तो उससे पहले रेपो बिल्डअप करना होता है बच्चे के साथ में, उसे कंफर्टेबल करना होता है, उसे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से करना है। और उसके बाद में जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे किरण मैम और मैं, फिर हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। टेस्ट तो आप सो वो, ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ये प्रेफर ये करिएगा कि आप बैठकर काउंसलर से बात कर सके, क्योंकि रिपोर्ट है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, शायद कुछ टर्म्स ऐसे लगे कि इसका क्या मतलब होगा, मेरे बच्चे के बारे में क्या जानकारी है ये, तो जब हम एक प्रोफेशनल से डिस्कस करते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता और यूजुअली एक बेनिफिट ये भी होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो चीजें और एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं जो कि कंसर्न में रहती है, राइट? सो यू वुड ऑल्सो गेट दैट चांस एज वेल।
Okay, so I think no more questions are there, Yes. right? So we can move ahead. So this is the QR code. ये QR कोड है. इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. इस कम्युनिटी पे जो यूजुअली जो अपडेट्स होती हैं पेरेंटिंग के रिगार्डिंग, जो अभी रीसेंट रिसर्च में चल रहा है पेरेंटिंग के रिगार्डिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम ड्रॉप करते हैं. इस कम्युनिटी को आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी आपकी चैट बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है. एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर देयर. आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज वहां पे डाल सकते हैं. काफी सारे पेरेंट्स तो आई गेस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो लोग नए राइट. हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भी अपडेटेड रहें. वहां पे जो ये वेबिनार्स होते हैं उनके लिंक्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, और नेक्स्ट वेबिनार कब होगा, किस बारे में होगा, ये जानकारी भी होती है. एग्जैक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चैट बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है उस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप चैट बॉक्स में एक थम्स अप भेज दीजिए ताकि हमें पता रहे कि किन किन पेरेंट्स ने ज्वाइन कर लिया. अभी जैसे ही ये वेबिनार एंड होगा, इसके बाद में एक सर्वे आपके पास ओपन होगा एंड दैट सर्वे इज गोइंग टू हेल्प अस टू कनेक्ट टू यू इन अ बेटर वे. वी कैन हैव योर थॉट्स, वी कैन हैव योर सजेशंस. आपके सजेशंस, आपके थॉट्स, आपके फीडबैक्स के बारे में हमें पता चलेगा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूरो इंटरनेशनल स्कूल टू ऑल ऑफ यू कि जो अभी सर्वे ओपन होगा, वी रिक्वेस्ट यू टू fill it out and help us to understand कि ये जो वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं, क्या आपको ये किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, and would you like to have these kind of webinars further in future ahead as well. एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको लगता है कि ये वेबिनार, आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके भाई बहन होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, या फिर आपके एक्सटेंडेड जो फैमिली है उनके साथ में भी आप शेयर करिए, उनको बोलिए कि वो ज्वाइन करें. कि देखिए, हमें सबको ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोसाइटी में. जैसे हिमांशु मैम और हमने ये, और हमारी जो स्कूल है उन्होंने ये स्टेप लिया है कि हम ये वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा के, ताकि ये जो हम 1 घंटा निकाल रहे हैं, इतना जो कंटेंट है वो सब तक पहुंच सके, और जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, हम एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी, खूबसूरत समाज है वो बना सकते हैं. Exactly. So I think we can move ahead, Sure. and we would like to thank all the parents who have come here. Your presence shows that you are taking a step to improve your own mental health, your child's mental health, and you are taking care of it. So we would like to thank you for being present here. Thank एंड you so much, आपसे Kiran ma'am. सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नेक्स्ट वाला संडे है आप उस दिन भी ज्वाइन करें. उस दिन नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ब्रॉड में बात करेंगे, तो आप सभी बिल्कुल मिलिए नेक्स्ट संडे को. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मांशुला. Thanks to you too. And see you on the coming Sunday. डेफिनेटली.